प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। उमंग उमंग से भरे मेरा जीवन, यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके लिए नया साल का मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। आज का इस पहला पवित्र मिस्सा में आपका निवेदन है, मास ऑफ फूड फॉर डिवाइन हेल्प फॉर फ्रांसीना एट द ऑफिस फ्रॉम ट्रबल्ड पर्सन्स, blessed Holy Trinity to be in the center of the marriage and the healing from all the sicknesses. Mass offered for the healing of Rhea from the tendencies of rashes and a lungs problem for Rachel and a good future. Mass offered for Selena for the family to be together, for the gift of a child, and for Satish to be converted to the Catholic Church. Mass offered for God's blessings on Christina, Ronak, Roshni and Prakash, healing from migraine headache of Christina. Mass offer for the good future and marriage settlement for Dr. Regina and for the good health of T. Francis and Irene Francis. Thanksgiving for the expansion of the Rosary Group and for the fulfillment of God's vision of raising intercessors and for the special intentions of all the Rosary team members. Mass offered by Sister Banu. Thanksgiving Mass for the good future of Varun, Varsha and to grow in the Lord. Mass offered by Prasanna Kumar. Thanksgiving Mass for the good marriage proposal to Sopna and God's blessings upon the family. Mass offered by Sopna. Thanksgiving Mass for God's blessings and protection, deliverance from all evil, bondages to Narmada. Mass offered by Kanaka. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon Madhukar and a good job and for the good health of Nirmala. Fulfillment of God's will in the life of Kanaka. Mass offered by Nirmala. Thanksgiving Mass and for God's blessings and for the good education, bright future of Divya Tej. Mass offered by Nirmala and family. Thanksgiving Mass for the peace and the unity in the family of Kumari Simon, Rajeshwari, Shambhar Shivarao and a brighter future of the children. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving and for the brighter future of all the children. Mass offered by Renuka and Joji. Thanksgiving Mass for the deliverance and the healing of Vishwaja, good health of Usha and her baby. Mass offered by Savitri. प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आपका इन निवेदन के लिए हम आज का पहले मिस्सा बलिदान हम छटाते हैं और आइए आप सब लोग विश्वास के साथ, आनंद के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम भाग ले लेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear friends, wish you all a very, very happy new year 2021. आप सब लोगों को मेरे प्यारे भाई और बहनों, नया साल के मुबारक हो 2021 में। इस पवित्र मिस्सा बलिदान चटाने के लिए ये नया साल का सबसे पहला पवित्र मिस्सा आपके लिए हर एक व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं।
प्रवेश वचन। आज हम पर प्रकाश चमकेगा क्योंकि हमारे हितार्थ प्रभु ने जन्म लिया है। उनका नाम होगा अपूर्व ईश्वर, शांति का दाता, आगामी युगों का पिता। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नया साल का पहली मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आपका मन में बहुत सारे सोच विचार होगा, आपका भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपका फाइनेंस के बारे में, आपका बिजनेस के बारे में और आपका शादी के बारे में बहुत सारे निवेदन हो सकता है। और पिछले साल का कुछ दुख, दर्द, कठिनाइयां सब आपका मन में होगा इस रात को, इस पवित्र बलिदान के समय। इसलिए 1 मिनट के लिए हम शांत हो जाएंगे, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके आपका तन, मन, शरीर इस पवित्र मिस्सा में प्रभु को हवाले कर देंगे। आपका भविष्य प्रभु को सौंपेंगे। आपका बच्चे, आपका फाइनेंस, आपका तबीयत, सब कुछ इस नया साल की पहला पवित्र मिस्सा में प्रभु को हवाले कर देंगे, सौंप देंगे। विश्वास के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ इस पवित्र मिस्सा हम चढ़ा देंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके साथ भी। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र कैथोलिक कलीसिया आज ईश्वर माता मरियम का त्योहार मनाते हैं। हमारी प्रभु की माता धन्य कुमारी मरियम से तो हमारा प्रभु ने जन्म लिया है। उस प्रभु के नाम से पूरे दुनिया को चंगाई मिला, पापों से छुटकारा मिला और रक्षण प्राप्त हुआ है। इसलिए आज संत योसेफ धन्य कुमारी मरियम के साथ चरनी में लेटा हुआ यीशु क्रिस्त को चरवाहे आराधना किया है। इसलिए आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारा रक्षण के लिए, हमारी विमोचन के लिए, हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त का जन्म का कारण कुमारी मरियम है। इस धन्य कुमारी मरियम ने हमारी माता है, ईश्वर की माता है। इसीलिए यह नया साल का फर्स्ट दिन में, नया साल का पहला पवित्र मिस्सा में हम कुमारी मरियम को, ईश्वर की माता का त्योहार मनाते हैं और ईश्वर की माता के साथ यीशु क्रिस्त को हम आराधना करते हैं। इसलिए आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उस धन्य कुमारी मरियम का प्रार्थना सहायता हम मांगेंगे। उस माता ने
उसका पुत्र यीशु क्रिस्त के पास हमको लेके जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस नया साल 2021 में आपका मन में बहुत सारे सोच विचार होगा, प्रार्थना होगा और बहुत सारे कामनाएं, आशाएं पूरी करने के लिए ही है। और पिछले साल में कोविड-19 के द्वारा या ना कुछ शरीर का दुख दर्द घटनाइयों और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आपका मन में कुछ दुख, कुछ यातनाएं हो सकता है। इस पवित्र मिसाल बलिदान में ये सबको हम इस पवित्र मिसा में प्रभु को सौंप दे देंगे और ऑफरिंग के रूप में उसका हाथों में हम बलिदान का इस प्रार्थना, इस मिसा हम चढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए हम प्रभु के सामने अभी प्रार्थना करेंगे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के रक्त से उन्होंने हमें शुद्ध कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। अभी हम सब आनंद के साथ, उल्लास के साथ हमारे लिए ये नया साल 2021 भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए आज सर्व महोत यीशु क्रिस्त को, भगवान को, पवित्र आत्मा को इस महिमा गान के रूप में आनंद से खुशी के साथ एक गाना गाएंगे। हम पर
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने नित्य कुंवारी मरियम के मातृत्व के द्वारा संसार को मुक्ति का वरदान दिया है। जिन्होंने हमें जीवन के स्रोत प्रभु यीशु को प्रदान किया, वही हम सबके लिए सुस्ते विनेदन करती है। यह प्रार्थना सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ गणन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। पाठ का मुख्य वाक्य आशीर्वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इज़राइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मांगूंगा। वचन तेरा दिल से मैं मांगूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है।
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पाठ संख्या 4, पवित्र वचन 4 से 7 तक। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारा हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन 16 से 21 तक। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया था। सभी सुनने के बाद चरवाहे की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह दिन पर इस पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था, वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन के बाद बालक के कथने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। या प्रभु की सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को नया साल का मुबारक हो। विश यू ऑल a very very happy new year 2021। आज रात में
नया साल के पहली पवित्र मिस्सा हम चढ़ाते हैं। प्रभु का वचन हम सुनने जाते हैं। ये नया साल में आपका जो भी प्रार्थना हो, आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस हो, प्लान हो, सब पूरी हो जाने के लिए हम इस वचन को हम विश्वास के साथ, आनंद के साथ हम अपना लेंगे। प्रभु का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ में चैप्टर 29 में पद संख्या 11 और 12 में ऐसे कहते हैं, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु ने एक अच्छा योजना बनाता है। हर एक मनुष्य भविष्य के लिए एक अच्छा प्लान रखता है, रखने वाला है हमारा प्रभु यीशु। एक बार वचन सुनेंगे 11 और 12। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्दित अपनी योजनाएं जानता हूँ। हर एक मनुष्य के लिए एक अच्छा योजना बनाने वाला है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्तु। इस योजना, पवित्र वचन यही कहते हैं, आपके भलाई के लिए करता है, आपका बुराई के लिए नहीं है। इस योजना, इस प्लान मां की गोख में जब एक बच्चा पैदा होता है तब से होता है, और प्रपंच की सृष्टि करने के लिए पहले से प्रभु ने ऐसा एक योजना बनाया है हर एक मनुष्य के लिए। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ में चैप्टर 139 वर्स 13 में एक अच्छा वचन हम पढ़ते हैं, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरी शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। एक अच्छा गाना है, माँ की गोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के संतान हैं। जैसे हर एक माता पिता हो उनके बच्चों के लिए एक एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है और आगे पढ़ाते हैं, सिखाता है, चलाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए एक एक योजना बनाता है, आपका भलाई के लिए बनाता है। और माँ की गोख में जब तुम थे तब से प्रभु का ये योजना, उसका प्लान उसने हर एक व्यक्ति के लिए करता रहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सामुएल का पहला ग्रंथ में 16 चैप्टर में एक इंसिडेंट है। साउल के मरने के बाद प्रभु मसीह ने दावीद को इज़राइल सिंहासन में अभिषेक करने के लिए फैसला किया है। इस फैसला पूरी करने के लिए सामुएल को प्रभु ने बुलाया, जाकर के जैसे का घर में एक मनुष्य को मैं राजा का रूप में चुन लिया हूं और उसको अभिषेक करो। सामुएल को पता नहीं है किसको अभिषेक करना है, वो मनुष्य कैसे होगा, उधर क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं मालूम। पर सामुएल को यही पता है, प्रभु ने बोला तो जाओ, जिसको अभिषेक करना है मैं तब ते बताऊंगा। सामुएल ने चला गया। एक व्यक्ति का, एक प्रभु के हाथ में हर एक मनुष्य को उन्होंने कैसे चलाता है, कैसे यूज करता है,
हमको मालूम होता है। और दूसरा व्यक्ति है जस्से, दावीद का पिताजी ने। जस्से को 7 संतान होता है, 7 लड़के हैं, और हर एक व्यक्ति को सामुएल के सामने उसको खड़ा कर दिया। और उन्होंने सोचा कि ये तो बुद्धिशाली है, तदबीर है और बलवान है, उनको सामुएल अभिषेक करेगा। पर किसी को भी अभिषेक नहीं किया। और जैसे को मालूम नहीं है, उनके बच्चों को किसी को भी पता नहीं है किसको अभिषेक करेगा, वो क्या करेगा, क्या करने वाला है। एक दूसरा एक कैरेक्टर है। और तीसरा है दावीद, वो जंगल में है और बकरियों को पालन करता है। जब दावीद ने आया, प्रभु की आत्मा सामुएल को दावीद को अभिषेक करने के लिए प्रेरणा दी, और सामुएल तेल से दावीद को अभिषेक किया है। अभी आप देखिए, एक तरफ सामुएल है, दूसरा तरफ जस्से है और उनका बच्चे हैं, और तीसरा तरफ है दावीद है। प्रभु की वाणी और प्रभु की प्लान क्या है? दावीद को इज़राइल देश में एक राजा का रूप में अभिषेक करना है। अभिषेक करने के लिए इतना माहौल बनाया और मनुष्य को बुलाया, एक प्लान बना दिया, और वक्त आने पर वो प्लान दावीद के लाइफ में प्रभु ने पूरा किया है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रकाशन ग्रंथ 3 चैप्टर में और 7 वचन में हम ऐसे एक अच्छा संदेश हम सुनते हैं। फिलदोपिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो सच है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसका वचन सत्य है और जिसका ऊपर दावीद का कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता, जिसके खोलने पर कोई भी बंद कर नहीं सकता, और जिसके बंद करने पर जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। कोई नहीं खोल सकता। अभी आप देखिए, 2 काम है, एक खोलना और दूसरा बंद करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कुछ खोलने के लिए, कुछ रास्ता बनाने के लिए, एक मौका बनाने के लिए कोई मनुष्य की आवश्यकता है, और दूसरा बात है बंद करने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ एक मनुष्य का आवश्यकता है। प्रभु के हाथ में हम सब ऐसा बंद करने का या खोलने का कुछ ना कुछ काम हम करते रहते हैं। कुछ बंद होने से और दूसरा रास्ता हमको खोलता, और दूसरा कुछ रास्ता खोलने से और एक रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद करने वाला आया प्रभु परमेश्वर है, रास्ता खोलने वाला ही प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई आपका एक रास्ता बंद किया, अगर कोई आपका एक रास्ता बाधा डाला, अगर कोई आपका रास्ते में आपको रोक दिया, हम क्या सोचे? वो दुश्मन है, वो मेरा दोस्त नहीं है। और अगर कोई रास्ता खोल दिया, मौका बनाया और मुझे आमंत्रित किया, वो मेरा दोस्त है। हमारे जीवन में इस दोस्ती और दुश्मनी, रास्ता खोलने वाला मेरे ओर से अपना आदमी मानते हैं, और रास्ता बंद करने वाला हमारा दुश्मन है। ऐसा एक माहौल है, ऐसा एक सोच विचार है। पर हम आज बाइबल के ऊपर ध्यान मन करने से प्रभु यीशु ने हमको यही सिखाता है कि जो भी रास्ता बंद करने वाला, जो भी रास्ता खोलने वाला, दोनों प्रभु के हाथ में एक एक पुतली है। प्रभु ने उनको आगे चलाता है
और कुछ काम करवाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर हर एक मनुष्य के लिए एक एक योजना बनाया है, एक एक प्लान बनाया है। वो प्लान सही टाइम पर पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस नया साल में 2021 में प्रभु का इस योजना पूरी करने के लिए आखिरी में और एक शब्द हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का ग्रंथ में चैप्टर 6 और पद संख्या 11 और 12 में एक अच्छा संदेश प्रभु हमको देते हैं। हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक, मैं चाहता हूं कि आपका आशा परिपूर्ण होने जाने तक आप लोग में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। वही तत्परता, वही इंटरेस्ट आप दिखलाता है। आप लोग ढिलाई ना करें, वरना उन लोगों का अनुसरण करें जो आपके विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बाइबल में कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल में है जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु की प्रॉमिसेस पूरी होने तक तत्परता से, आशा से, विश्वास से जीवन आगे बढ़ाया और प्रॉमिस ने पूरा होने तक विश्वास न छोड़ा और उनके जीवन में पूरी तरह प्रभु की कामनाएं, प्रभु की प्रणाली का प्रभु की प्लान्स पूरा हो गया है। इसलिए इस नया साल में 2021 में हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे लिए जो भी प्लान बनाया रखा है और आपके लिए जो भी बना के रखा है वो सब पूरी होने तक विश्वास के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका प्लान शाश्वत है, उनका प्लान पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इस नया साल में 2021 में हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। हर एक मनुष्य के जीवन में आपने जो भी प्लान बनाया है, जो भी प्लान आपने लिखा है, हमारी हर एक व्यक्ति के जीवन में वो पूरा हो जाएंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति से विश्वास के साथ, आनंद के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे प्रार्थना यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन, आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अभी अर्पण का समय है। इस नया साल में आपका जो भी प्रार्थना हो, आपका जो भी निवेदन हो, आपका जो भी भविष्य के बारे में सोच विचार हो, उस सबको इस अर्पण के समय प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दे देंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं देने को कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं देने को कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का इस बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा में नया साल का शुभकामनाएं, नया साल का आपका प्रार्थनाएं, आपका जो निवेदन है, जो आवश्यकता है, आपका भविष्य में जो भी ड्रीम्स आपके लिए हैं, आपके बच्चे के बारे में, फाइनेंस के बारे में और परिवार के बारे में, आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, ये नया साल का पहली पवित्र मिस्सा है, नया साल का पहली अर्पण है। इसलिए एक समय, एक मिनट आप शांत हो जाकर आपका मन की सोच विचार और प्रार्थनाएं इस भेंट के समय प्रभु को
सौंप दे देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, उनका भविष्य के लिए कृपा प्रदान करें। और आपके परिवार में शांति समाधान को कृपा मिले, रोगियों को चंगाई मिले और शैतान के प्रभाव से आपको छुटकारा मिले और पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र वचन से, प्रकाश से आप अच्छा जीवन बिताएं। इस ऑनलाइन पवित्र में स्वामी भाग लेते हुए प्रभु की प्रसन्नता आप प्राप्त होने के लिए आपका तन, मन, शरीर इस भेंट में आप समर्पित करें। ये हमारी प्रार्थना है यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दें। उचित और आवश्यक हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा तो कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमार पर अंकुश रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए समानता ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया है। इसीलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हुए कहा, मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुन को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को।
सन्ना आने वाले राजा को। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। हमारे इस रोटी और द्राक्षस को पवित्र आत्मा यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त का रूप में करने के लिए समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब मिसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, या मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारी विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हम ना उपकार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा
हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की कठोर रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष तुम्मावाला और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन में सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब शब्दों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्रात्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जैसे प्रभु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरी राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
पाप हर लेता तू। हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर की बलित मेमने संसार के पाप हर लेता तू। शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तो यही शब्द कह रे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहें। आमेन। रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से करते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में नाता कभी, फिर भी दिया सुने सभी। तुमसे मिली है हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में नाता कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नित्य कुमारी मरियम को तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता मानते हैं।
तेरी दया से हमने स्वर्गिक संस्कार यूखरिस्त को आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। हमारी विनती है कि यह संस्कार अनंत जीवन को मार्ग में हम सबके लिए सहायक सिद्ध हो सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, यह मिसा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। My dear friends, wish you all a very very happy new year 2021। प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोगों को नया साल 2021 का मुबारक हो। और गायक मंडलों के साथ हम सब आपके लिए डिवाइन मर्सी सेंटर की ओर से नया साल का विशिंग करते हुए एक गाना गाना चाहता हूं। My dear friends, wish you all once again a very very happy new year 2021। प्रभु की आशीष के साथ इस नया साल 2021 आपको बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान करे, यही हमारी शुभकामना है, यही है हमारी प्रार्थना। हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा हो आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना
सदा ही, आंचल तुम्हारा हो माँ। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो माँ। आशीष देना सदा ही, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो माँ। जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी ईश माता, हमरे भी तू है माता, आंचल तुम्हारा हो माँ। आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो माँ।